નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યા ભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કક્ષા 7ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે શીખવાનું છે ઇકાઈ 5 ધરતી કી શાન કવિતા છે. તો તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો લાગશે કે ધરતી કી શાન એટલે ધરતીનું ગૌરવ. આપણા ધરતીનું જે ગૌરવ છે તો એ કોણ છે? તો કે મનુષ્ય. તો અહીંયા પંડિત ભરત વ્યાસજીએ સરસ મજાનું આ કાવ્ય અહીંયા બનાવીને આપણની સમક્ષ આપ્યું છે. તો પહેલાં આપણે ભરત વ્યાસજીનો પરિચય મેળવી લઈએ. તો પંડિત भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे. आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था. आपने कई गीतों की रचना की है. यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है. तो हिंदी फिल्म है गांव गोरी से यह गीत लिया गया है. तो इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है. तो मनुष्य है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है. जो मनुष्य में विचारने की शक्ति, बोलने की शक्ति, तो सब यह मनुष्य में ईश्वर ने दी है. तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है. तो मनुष्य धरती पर इतना कठोर परिश्रम किया है कि जल पर, स्थल पर और आकाश में कई उपलब्धियां એટલે ઘણા બધા આપણને જે ઉપયોગી વસ્તુઓ છે એને આપણે પ્રાપ્ત કરી છે, તો अर्जित की है. मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है. प्रकृति ने पण बहुत अमुक सीमा सुधी ज एना अनुकूल ढालने में सफल हुआ है. मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. અહીંયા મનુષ્યની એક પ્રશંસા કરવામાં આવી છે કે મનુષ્ય માટે કોઈ પણ કાર્ય છે એ અસંભવ નથી. એ કોઈ પણ કાર્ય કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર જઈને મનુષ્ય કાર્ય કરી શકે, પણ ક્યારે? તો કે કઠોર પરિશ્રમ હોય તો. मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है. मनुष्य कई पण वस्तु विचारे कि मारे आ करवानुं ज छे तो ये करी शके छे. यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है. यह भाव अंतर्निहित है कि यह बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है. ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी तो बनाया ही है. बुद्धि के साथ साथ उसमें गजब का साहस है. बुद्धि तो ईश्वर ने दी है, उसके साथ साथ उसे गजब का साहस है. किसमें? तो कि मनुष्य में. मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम दिखाए हैं जो अभी असंभव माने जाते हैं. ऐसे काम दिखाए हैं इस धरती पर कि जो संभव असंभव थे उसे संभव माने जाते. जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है. तो आकाशनी अंदर આપણે જઈએ કે અંતરિક્ષમાં આપણે જઈએ કે આ ધરતી પર, પછી અંદર પાતાળમાં, તો કોઈ પણ જગ્યાએ આ મનુષ્ય છે ત્યાં સફળ થયા છે. तो प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया है. तो आनी अंदर आ काव्यनी अंदर जे આપણે ધરતીની શાન કહીએ છીએ મનુષ્યને, એની અંદર જે છુપાયેલી અદ્ભુત શક્તિઓ છે અહીંયા બતાવી છે. તો પહેલાં હું કાવ્યનું તમને થોડુંક ગુજરાતીમાં વાત કરી દઉં, પછી આપણે કાવ્ય હિન્દીમાં સમજશું. હે ભારતના પુત્ર, તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે. તારી મુઠ્ઠીઓમાં તોફાન બંધ છે. તારા તોફાનને પણ વશ કરવાની તાકાત છે. તારામાં આ જે તોફાન આવેલું છે ધરતી પર એને પણ વશ કરવાની તાકાત મનુષ્યમાં છે. મનુષ્ય તું ખૂબ મહાન છે. અહીંયા કવિ મનુષ્યને ખૂબ મહાન ગણ્યો છે. હે મનુષ્ય, તું ઈચ્છે તો પર્વતોને પણ તોડી શકે છે. ઘણા બધા એવા મનુષ્યોએ મશીનો બનાવ્યા પર્વતોને તોડવા માટેના. તો કહે છે કે હે મનુષ્ય, તું પર્વતને પણ તોડી શકે છે. તું ઈચ્છે તો નદીઓના વહેણની દિશા બદલી શકે છે. આપણે પણ જાણીએ છીએ કે ઘણી બધી કાર્યોની અંદર અહીંયા ઘણી બધી જે મનુષ્યએ જે બતાવ્યું છે કે નદીઓના વહેણને પણ દિશા બદલી શકે છે. તું ઈચ્છે તો માટીમાંથી અમૃત કાઢી શકે છે. તું ઈચ્છે
તો ધરતીને આકાશ સાથે જોડી શકે છે. પોતાના અનોખા કાર્યોથી મરીને પણ અમર થઈ શકે છે. એટલા બધા કાર્યો કરે છે. આજે એવા મહાન મહાપુરુષો આજે પણ મર્યા પછી પણ અમર થઈ ગયા છે. શું કામ? કે એને એટલા સરસ મજાના ધરતી ઉપર કાર્ય કર્યા છે. તને અમરતાનું વરદાન મળ્યું છે. આજે પણ લોકોએ એવા આ ધરતી ઉપર કાર્ય કર્યા છે, તો આજે પણ આપણે એમનું નામ આપણે રટીએ છીએ. તારા આત્મામાં સ્વયં પરમાત્મા બિરાજમાન છે. આ બધું ક્યારે થાય? જ્યારે પરમાત્મા ઈશ્વર એના આત્મામાં બિરાજમાન થાય ત્યારે. હે મનુષ્ય, તું ક્રોધે ભરાય તો તારી આંખો આગ વરસાવી શકે છે. તો જો એટલો બધો મનુષ્ય ક્રોધમાં આવી જાય તો આંખની અંદર પણ આગને વરસાવી શકે. તારી ચાલમાં એ શક્તિ છે જે ભૂકંપમાં હોય છે. તારી છાતીમાં મહાકાળ રૂપી શિવ બેઠા છે. હે પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે હિમાલય જેવું ઉન્નત મગજ છે. તું જો ક્રોધથી તારી ભ્રુકુટીને તીરછી કરે તો તેની એ જ અસર થશે. શિવના તાંડવના તાલમાં હોય છે. હે મનુષ્ય, તું તારી શક્તિને ઓળખ. તારી વાણીમાં યુગનો લલકાર છે. તારો અવાજ સમગ્ર યુગનો અવાજ છે. હે મનુષ્ય, તારામાં જો ધરતી જેવી ધીરજ છે, તારામાં અગ્નિ જેવી શક્તિ છે. તું ઈચ્છે તો કાળને પણ રોકી શકે છે. તું જો હિંમતથી કામ લે તો પાપોની વિનાશ લીલા પણ અટકી શકે છે અને મનુષ્યને હેવાન બનતો રોકી શકે છે. તારામાં મહાન દેવગુરુ જેવી બુદ્ધિમત્તા છે અને તું પવનની જેમ ગતિશીલ છે. તું આકાશની પણ ઊંચે પહોંચવાની શક્તિ ધરાવે છે. આકાશથી પણ ઊંચે પહોંચવાની શક્તિ ધરાવે છે. તો અહીંયા મનુષ્યએ પહેલાં તો આપણા દેશની અંદર, આપણી આ દુનિયાની અંદર મનુષ્યએ એવા કાર્યો કર્યા છે કે આપણે જાણે અમુક વસ્તુ તો એવી છે કે જ્યારે આપણે વિચાર બહાર હોય છે કે આટલું બધું જે અસંભવને સંભવ કરી નાખે છે મનુષ્ય, એના વિશેનું આ સરસ મજાનું કાવ્ય છે. તો પહેલાં મનુષ્યએ ક્યાં પ્રગતિ કરી? તો કે રાસાયણિક બાદ ખાદમાં ट्रैक्टर बनाયું मनुष्य, कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया, विद्युत शक्ति को चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि तरह तरह के उत्पादनों किए। भवन निर्माण के आदि निर्माण की यात्रा बहुत सुगम हो गई। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि संचार अवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया था। कंप्यूटर की आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए नए साधन खोजे हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। तो अहींया आ सरस मजानुं काव्य छे। आपणे हवे आ काव्यने आगळ वधारशुं। तो अहींया धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान रे। तो अहींया मनुष्यनी एटली बधी प्रशंसा करी छे कविए के गौरव एना माटे अभिमान छे कविने के मनुष्य, हे भारतनो पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठी में तूफान बंद है। तू एटलो बधो शक्तिशाળી छे के तारी मुट्ठीनी अंदर तूफान बंद है। तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। जो तू विचारे तो आ तोफान जे आवी रह्युं छे एने पण तू वशमां करी शके छे, ताकत छे। मनुष्य तू बहुत महान छे। ते कहे छे के मनुष्य तू महान छे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। કેટલું સરસ મજાનું કાવ્ય છે મનુષ્ય માટે કે હે મનુષ્ય, તું ચાહે તો પર્વત કો તોડ सकता है। જો પર્વતને તોડવું હોય તો એ મનુષ્યના હાથમાં છે। આપણે પણ ઘણી વખત આપણે આપણે જતા હોઈએ છીએ પ્રવાસમાં, સાપુતારા છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે, તો ત્યાં ઘણીવાર પહાડોને આપણે મશીનો દ્વારા તૂટતા જોતા હોઈએ છીએ। તો અહીંયા કવિ એવું કહે છે કે તું ચાહે તો पर्वत को तोड़ सकता है, तू चाहे नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है। जे नदियोनो बहाव छे तो एने पण दिशा तू बदली सके छे। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। जो तू चाहे तो माटीमांथी पण अमृत निकाल दे। तो
અહીંયા ખેડૂત છે તો ખેડૂત છે તે અનાજ ધરતી પર વાવીને પણ આપણને સરસ મજાના મોતી જેવા દાણાનું અનાજ આપે છે અને આપણા બધાનું भरण पोषण करे छे। तो कि तू चाहे तो धरती को आकाश को जोड़ सकता है, तू अपने अनोखे कामों में मरकर भी अमर हो सकता है। तारा बधा एटला बधा अनोखा कार्य छे, तू मरीने पण अमर थई शके। तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। ते कहे छे कि तने तो अमरतानुं वरदान मळ्युं छे, तारी आत्मामां तो परमात्मा बैठा छे। तो केवी रीते? तो आना वखाणो एने शुं काम कर्या? तो के अन्य जीवों करता, तो के मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। एना बीजा प्राणियों करता मनुष्यों विचारवानी अने समझवानी बुद्धि वधारे छे। जो अनोखे आविष्कार किए हैं, केटला बधा साधनों शोध्या छे। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, उसका पास भाषा की शक्ति है। तो पहला तो मनुष्य ने वाणीનું વરદાન મળ્યું છે ઈશ્વરથી, પરમાત્માથી। તો એ આપણા માટે બહુ સારી વાત કહેવાય। इसके बल पर उसके अभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। जो वाणीना बल परથી જ સંસ્કૃતિનો વિકાસ થયો છે। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवो करता महान છે। તો અહીંયા જ્યારે મનુષ્યની વાત કરવામાં આવે ત્યારે કે મનુષ્ય છે એ અન્ય જીવો કરતા મહાન છે। तो कि मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के बहाव को रोक सकता है, मनुष्य असंभव लगने वाला काम भी कर सकता है। तो नयनों में ज्वाल, तो अहिया नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी का भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को ती जान जरा पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो अहियां एम कहे छे कि तू तारा पोतानी जातने ओळख के तारा वाणीनी अंदर एक युगनो आह्वान छे, तू नवो युग रची शके छो, एटलू बधी तारामां शक्ति छे। तो के हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र में आग बरसा सकता है। कि मनुष्यनो જ્યારે ક્રોધ થાય ત્યારે એના નેત્ર છે એમાં આગ વરસાવી શકે। તેરી ચાલ में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। મનુષ્યના એટલા બધા વખાણ કર્યા છે કે તારી ચાલમાં એટલી બધી શક્તિ છે જે ભૂકંપમાં હોય છે। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा है, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा है। पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। एना दिमाग ने हिमालय साथे सरखाव्यो छे। जो विद्यार्थी मित्रों के तेरे दिमाग में हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है, कि एटલું બધું दिमाग मोटું છે, तू चाहे तो कोई पण कार्य કરી શકે। જે हिमालयનું છે એ સૌથી ઊંચામાં ઊંચું એનું પર્વત છે। તો કે हिमालय છે ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है। जो कि तू क्रोध में तू तारी भौं छे ए तिरछी कर दे, कि भौं यानी क्रोधाग्नि, भौं की तिरछी करना। एक तारू मुख छे एकदम क्रोधायित में होय अने तिरछू कर दे तो शिव जेवू लागे। तो अहींया शिवनी साथे सरखाववामां आव्युं छे कि भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। जब शिव क्रोधित होते और वो तांडव का नृत्य करते तो वो क्रोध के समय करते थे। इसीलिए मनुष्य को शिव के तांडव के ताल से उदाहरण दिया गया। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। के छे कि हे मनुष्य, तू तारी शक्ति ने पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज में सारे युग की आवाज है। तारी वाणी में एटली बधी युगनी ललकार छे के तू सारे युगनो अवाज छे। तो अहींया आ नयनोनी ज्वालनी सरस मजानुं आपणने आ काव्य समझावे छे। पछीनुं छे, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले तो गुरु सा गतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान रे। तो अहींया
આપણે આગળ ચિત્ર જોઈએ જ છે, સ્ક્રીન પર જુઓ કે જો મનુષ્યની ઉડાન કેવી છે, તો કે આકાશ કરતાં પણ ઊંચી છે। તો હે મનુષ્ય, તુજ મેં ધરતી જૈસા ધીરજ है। તો મનુષ્યને ધરતી સાથે સરખાવ્યો છે કે તારામાં ધરતી જેવી ધીરજ છે। ધરતી મામાં એટલી બધી ધીરજ છે કે એ ઘણું બધું સહન કરે છે। તો એક ધીરજવાળી માતા ધરતી માતા, તો કે ધીરજતા ધરતી માતામાં છે, એવી જ મનુષ્ય તારામાં છે। તુજ મેં અગ્નિ જૈસી શક્તિ है। તો અગ્નિ છે એ અતિ શક્તિશાળી હોય તો એને અગ્નિ સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે કે તારામાં અગ્નિ જેવી શક્તિ છે। તું ચાહે તો કાલ કો ભી રોક सकता है। કોઈ પણ એવો સમય આવ્યો હોય તો પણ તું એને રોકી શકે છો। તું અગર हिम्मत से काम ले तो पापों का विनाश લીલા કો રોક सकती है। જો આ ધરતી ઉપર એટલા બધા પાપ થાય છે તો કહે છે કે મનુષ્ય તું જો હિંમત કર તો આ ધરતીના પાપને પણ રોકી શકે છો, અને આ ધરતી જે વિનાશ તરફ જઈ રહી છે તેને પણ તું રોકી શકે છો। आदमी को हैवान बनने को रोका जा सकता है। आदमी और हैवान बनने में रोका जा सकता है। આજે આદમીમાં એના સંસ્કાર ધીરે ધીરે ઓછા થતા જાય છે અને ધીરે ધીરે આ ધરતીનો માણસની જે વિચારધારા છે હેવાન બનતી થઈ જાય। તો તું આ ધરતી પર રહેનારા જે મનુષ્યો છે એની વિચારધારાને સારી તરફ તું બદલી શકે છો, કે સારા રસ્તે તું એને ફેરવી શકે છે। તો આદમીમાં જે હેવાન એટલે કે એક રાક્ષસી જે બનવા માંગતા હોય છે તે એને તું રોકી શકે છો। એનામાં સારા વિચારો લાવી શકે છો, સારા સંસ્કારો લાવી શકે છો, એક ગુરુની જેમ તું એને શિક્ષણ પણ આપી શકે છો। તો तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता और तू पवन की तरह गतिशील है। તો કે મહાન દેવગુરુ, તો કે દેવગુરુ હોય જે દેવોના ગુરુ, એવી તો તારામાં બુદ્ધિમત્તા છે। और तू पवन की तरह गतिशील है। પવન છે એ ગતિશીલ છે, એ ક્યારેય પવન ઊભો રહેતો નથી, એટલે એની પવન સાથે સરખાવ્યો છે કે દેવગુરુ જેવી બુદ્ધિમત્તા છે કે મનુષ્યને જે હેવાન બનવામાં રોકી શકે છે, સારા વિચારો તું એને આપી શકે છો, સારા સંસ્કાર, સારું શિક્ષણ, સારું વિદ્યા, ઘણું બધું તું તારામાં એટલી બધી શક્તિ છે કે તું માણસોને હેવાન બનવામાં રોકી શકે છો। पवन की तरह गतिशील छो। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तू आकाश थी वधारे पण ऊंचाई पर पहुंचवानी शक्ति राखे छे। तो अहींया आ सरस मजानुं आ काव्य धरती की शान जे अहींया कविए जे ईश्वरे जे मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बताया है, यही काव्य जो मनुष्य ने बधा साथे एने सरखाव्यो छे કે ધરતી છે તો કે તારા તુફાનને તું રોકી શકે છો, તું પર્વતને પણ તોડી શકે છો, શિવ સાથે ભગવાન શિવ સાથે પણ એને સરખાવ્યો છે કે તું જ્યારે ક્રોધિત હો ત્યારે શિવ જેવો તારી તીરછી ભો થાય તો શિવની જેમ તું પણ તાંડવ કરી શકે છો। તો અહીંયા સરસ મજાનું આ કાવ્ય કવિશ્રી ભરત વ્યાસજીએ અહીંયા આપણને બતાવ્યું છે। તો આ કાવ્યની અંદર પંડિત ભરત વ્યાસજીએ આપણને જે એક ફિલ્મમાંથી લેવામાં આવ્યું છે અને સરસ મજાનું આ કાવ્ય છે। તો આપણે હવે આગળ એના શબ્દાર્થ શીખીએ। તો કે શાન તો વૈભવ, ગૌરવ, મુખ તો પ્રવાહ, વેણ, ધરતી તો પૃથ્વી, ધરા, અંબર તો આકાશ, નભ, જ્વાલ તો અગ્નિ, ભૂચાલ તો ભૂકંપ, ભાલ તો લલાટ, ભ્રુકુટી એટલે ભોં, કાલ એટલે સમય, ગતિમાન એટલે બુદ્ધિમાન। તો અહીંયા આપણા શબ્દાર્થ પૂર્ણ થાય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અભ્યાસ તરફ જઈએ। તો અભ્યાસની અંદર આપણે આગળ જઈએ તો કાવ્ય પ્રશ્ન 1 છે એ કરવાનો નથી, અને પ્રશ્ન 2 જે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए। તો પ્રશ્ન 2 ની અંદર સવાલ નંબર 1 છે કે आप क्या क्या कर सकते हैं। તો અહીંયા આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્ન દ્વારા તમને એવું પૂછવામાં આવ્યું છે કે આપ ક્યાં ક્યાં કર સકતે હે। તો તમે તમારા વિચારો પણ આ જવાબની અંદર લખી શકો છો, પણ મેં અહીંયા તમને પ્રશ્નનો જવાબ સ્ક્રીન પર આપેલો છે। मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ,
मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। पछीनो छे बीजो, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। तो मैं तमने आगळना सारांशमां जे मैं तमने बात करी कि घणा बधा क्षेत्रोनी अंदर मनुष्यए घणी बधी प्रगति करी है। तो कि रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य में कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति में चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दो पहिए विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। तो मनुष्य ने यहाँ जो प्रगति की है यही मैंने आपको जवाब में लिखी है। तो टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। मनुष्य के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। तो कि मनुष्यए आवा दरेक अलग अलग क्षेत्रनी अंदर अद्भुत प्रगति करी छे। त्रीजું, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। हवे अन्य जीवो बीजा प्राणीओ करता मनुष्य छे ते महान केवी रीते छे। तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। जो मनुष्यनी अंदर बीजा जीवो करता આપણે વિચારીએ કે એને વિચાર શક્તિ, સમજવાની શક્તિ અને વિશેષ बुद्धि बीजा प्राणियों करता વધારે આપેલી છે। इस बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। तो आ बुद्धि द्वारा मनुष्य घणे बधा साधनों शोध्या छे। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। जो मनुष्य ने वाणी न आपी होत तो आप जे आटलू थई शके छे ते थई न शके। तो कि मनुष्य को वाणी का वरदान मिला, ये परमात्मा तरफथी ज आपने एक वरदान मळेलू छे। उसके पास भाषा की शक्ति है। अने मनुष्य पासे सरस मजानी भाषा शक्ति छे। ए कोई पण भाषा सीखी सके छे, ए पण एक मनुष्य पासे छे। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। सभ्यता, विनम्रता, संस्कृति का विकास किया है। तो के भाषा के बल पर। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। आ प्रमाणे बीजा प्राणीओ करता मनुष्य छे एनी अवगणना करता वधारे छे। तो काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। तो अहियां उत्तर में छे काव्य में प्रकृति के तत्व और उनके समानार्थी शब्द। तो धरतीना बे शब्द थाय छे, भूमि अने पृथ्वी। तो आपणे आनी उपरथी आपणे वाक्य पण लखी शकीए छीए। तो धरती, भूमि, पृथ्वी, पर्वत, पहाड़, नदी, सरिता, माटी तो मिट्टी, अंबर तो आकाश, अग्नि तो आग, पवन तो हवा। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में उसका अर्थ ढूंढकर बताइए। तो अहियां हष्ट पुष्ट का मतलब है तगड़ा, हट्टा कट्टा, संवाद यानी कि बातचीत, शीघ्र यानी जल्दी, जोहर का मतलब पराक्रम, युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल भरना यानी उसको जोहर किया जाता है। अजनबी तो अपरिचित, वेदांत तो ब्रह्म विद्या, मुकद्दर तो भाग्य, शागिर्द तो शिष्य, वृत्ति मनोदशा मन का झुकाव, स्पष्ट तो यानी कि साफ साफ। प्रश्न 4, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ। तो अहियां काव्य पंक्तिनो भावार्थ आपेलो छे कि पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल,
तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल रे। तो मैं तमने આગળ પણ કાવ્યમાં સમજાવ્યું અને અહીંયા પણ ભાવાર્થ તમને સ્ક્રીન પર સમજાવેલું છે કે હે પૃથ્વી के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है। दूसरा, गुरु सा गतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से ऊंची उड़ान है रे। तो आनो भावार्थ અહીંયા એવી રીતે સમજાવ્યો છે કે હે मनुष्य, तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तू आकाशમાં પણ એનાથી વધારે પણ ઊંચા પહોંચવાની શક્તિ રાખે છે। તો અહીંયા આપણો અભ્યાસ પૂર્ણ થાય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય તરફ જઈશું। तो स्वाध्याय अंदर प्रश्न एक है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ को रोक सकता है, वह बहाव को भी मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वहीं धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाला काम भी कर सकता है। दूसरा, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो कि मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। मनुष्य की वाणी में बहु मोटी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। एटली बधी वाणी ईश्वरे एने एटली बधी वरदान स्वरूप आपी है कि लोगों ने प्रभावित करी सके छे वाणी द्वारा। वह लोगों के विचार बदल सकता है, तो कि वाणी द्वारा। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। तीसरा सवाल, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो अहींया सरस मजानो जवाब आप्यो छे कि मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। जो अहींया बताव्युं छे कि जे पशु समान बुद्धि धरावता माणसो छे एनी पशुता छे ए कम हो जाए। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदल सकता है। घणा एवा माणसो छे के जे हाव एकदम निष्ठुरता अने एनामां कोई दयाभाव नथी, कशुं ज नथी, कोई संस्कार नथी, तो मनुष्य एनी विचारधाराने पण बदली शके छे। प्रश्न 2, उचित जोड़ मिलाई। तो कि अहींया मनुष्य की आत्मा में, तो कि जवाब में आवे छे कि मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। दूसरा, मनुष्य ने नयनों में ज्वाल है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। तीसरा, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। चौथा, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। पांचवा, मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो अहींया आपणो प्रश्न 2 उचित जोड़ ए पण पूर्ण थाय छे। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प में से सामने राइट का चिन्ह कीजिए। तो मनुष्य चाहे तो काल को, तो एमां शुं जवाब आवे छे कि मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले। एमां तमारे पहला कोष्टकनी अंदर आप तमारे राइटनी साइन करवानी छे कि मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। तो त्रीजा नंबरना कोष्टक पर तमारे राइटनी साइन करवानी छे। त्रीजू, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। तो अहींया बीजा नंबरना स्थान पर तमारे राइटनुं स्थान करवानुं छे। पछीनुं छे प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हवे जैसे कि धरती आकाश, तो एनुं वाक्य थशे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो अमृत विष, तो एनुं विरुद्धार्थी थाय अमृतनुं विष। तो शंकर जी ने विष पी लिया था। दूसरा, वरदान, तो एनुं विरुद्धार्थी जाए अभिशाप। तो दहेज प्रथा की सामाजिक अभिशाप है। ऊंचा नीचा, शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। पाप पुण्य, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। पांचवा, जीवन मृत्यु, वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में जानिए और लिखिए। तो अहींया आपणे शब्दकोशना क्रम प्रमाणे आपणे गोठववानुं छे। तो पहला आपणे
જે શબ્દો આપેલા છે તેમાં આપણે જોવાનું છે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવ્યા પછી. તો પહેલો આવશે આઈના, તો દર્પણ. પછી આવશે ક્ષતિ, તો હાનિ. પછી આવશે ઝંકાર, તો પાયલ, વીણા. સિતાર આદિ કી ધ્વનિ. तूफान यानी आंधी. हवा पानी का भीषण उत्पादन. नयन यानी नेत्र, आँख. वरदान यानी कृपा. शीश यानी मस्तक, माथा. तो અહીંયા પ્રશ્ન જે સ્વાધ્યાયના અને અભ્યાસના પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે ધરતી કી શાન એટલે કે ધરતીનું ગૌરવ આ સરસ મજાનું કાવ્ય આપણે શીખ્યા અને હું આશા રાખું છું તમને પણ સમજાઈ ગયું હશે. અને આ સ્વાધ્યાયના અને અભ્યાસના જે પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ તમારે સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં હોમવર્ક સ્વરૂપે તમારે લખવાના રહેશે. થેન્ક યુ.